with the training session. Hi everyone, I am Amni Chauhan, the Secretary General of Sajag Yuva Manch 6.0, and I welcome you all to the training session of World Health Organization for Sajag Yuva Manch. So we all are back from vacations, and what a better way to dive back into action with something that feels like an educational vacation itself. Sajag Yuva Manch 6.0 promises two exciting days where you get to learn, lead, and enjoy all at once. It gives us immense joy and pride to welcome you to one of a kind conclave proudly organized by Rajasthani Yuva Sansad, co-founded by Advocate Isha Kapoor and Advocate Jai Saini, built on the powerful belief that Samvad hi hal hai. Dialogue is the only solution. Now, in the sixth edition of Sajag Yuva Manch, it continues its legacy as Delhi NCR's biggest school level MEUN conference. It's where young change makers like you engage in global and national issues not just to debate, but to understand, ideate, and lead. This year, we bring you 10 carefully curated committees ranging from international bodies to national policy chambers, each reflecting real time global events, conflicts, and ideologies. Whether you're role playing a diplomat, parliamentarian, or a policy analyst, there's a seat just for you. But the magic begins right before the conference. This training session, this particular session is where you learn how to research, align your research with your portfolio, and truly understand the agenda at hand. Many who represent here went on to represent in exclusive simulations like the Haryana Yuva Samvad at the Haryana Vidhan Sabha and the Delhi Yuva Samvad in the Delhi Vidhan Sabha. And you could be next. Let's make this journey one to remember. Here's to a powerful and purposeful Sajag Yuva Manch 6.0. I would now like to request Parsar to please carry over. ओके सो हेलो एवरीबॉडी। अब हम समझेंगे इस पर्टिकुलर जो डब्ल्यूएचओ हमारी कमेटी है उसके एजेंडा के बारे में। अब यहाँ पे किसी को थोड़ा बहुत भी पता है कि हमारा एजेंडा जो हमारा टॉपिक है इस बार का वो किस बारे में किस पे डिस्कशन करने वाले हैं हम? COVID-19 बताइए। It's about COVID-19 and it's about COVID-19 and are we ready for another pandemic if it will come, because many countries were not ready to fight it. ग्रेट। तो आप लोगों को मतलब अच्छे से इंफॉर्मेशन पता भी है। तो एक बार हम ये एजेंडा और एक गहराई में और डिटेल में हम समझेंगे। अब सबको 2020 का टाइम तो जरूर याद था, राइट? कि 2020 में किस तरीके से हमारे जो लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन के साथ साथ मेजर जो वर्ल्ड इकोनॉमीज थी और भी अलग अलग तरीके से बहुत ज्यादा सफर हमें देखने को मिला था। लोगों के पास सही से हॉस्पिटल की फैसिलिटीज नहीं थी, बेड्स नहीं थे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बहुत ज्यादा कमी हुई थी। लेकिन साथ ही साथ हेल्थ इमरजेंसीज तो थी, लेकिन उसके अलावा भी एक मेजर चीज हमें देखने को मिली थी जो कि कोविड-19 से रिलेटेड हुई थी। आप सबको ये याद है कि माइग्रेशन जो वर्कर्स थे उनको भी बहुत ज्यादा सफर करना पड़ा था। जब मोदी जी ने लॉकडाउन लगाया था तब उसके टाइम बहुत ही ज्यादा माइग्रेंट वर्कर्स को भी जो था वो डिफिकल्टी का सामना करना पड़ा था। तो जब हम कोविड-19 की बात करेंगे तो सिर्फ हम मेडिकल इमरजेंसीज के बारे में तो बात करेंगे ही, लेकिन हम उसके लोगों पे भी क्या-क्या इम्पैक्ट आए थे, लोगों की मेंटल हेल्थ पे, लोगों के अलग-अलग तरीके से किस तरीके से वो इम्पैक्ट हुए थे, हमें उसको भी साथ में कंसीडर करके चलना पड़ेगा। अब सबसे पहले हम समझते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या था। अब 2020 में वुहान में जो चाइना में है वहां से लैब से कोरोना वायरस वहां पे फैलता है। मेजर वर्ल्ड इकोनॉमीज जो थी वो ठप हो जाती हैं, उसको मतलब वो सही से वो सर्वाइव नहीं कर पाती। बहुत सारी कंट्रीज तो बिल्कुल ही डार्कनेस में चली जाती है। तो हमें पता चलना चाहिए कि 2020 का जो टाइम था वो कितना ज्यादा टर्मोइल में था और कितना ज्यादा एक डिफिकल्ट टाइम था। हम इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि मान लीजिए 2020 में एक हेल्थ मिनिस्टर होते हैं एक अफ्रीकन कंट्री के। वो हेल्थ मिनिस्टर डिस्कवर करते हैं कि कोविड-19 जैसी एक पेंडेमिक पूरी दुनिया में फैल रही है और उस अफ्रीकन कंट्री के पास इतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं है कि वो उस पर्टिकुलर बीमारी से लड़ सके। लेकिन बाहर की कंट्रीज जैसे जर्मनी, यूएसए और भी जितनी मेजर यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके पास बहुत ज्यादा फैसिलिटीज हैं। तो उससे एक डिवाइड हमें देखने को मिलेगा, राइट? कि कुछ कंट्रीज के पास बहुत ही ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज हैं और कुछ कंट्रीज के पास बिल्कुल भी ऐसी फैसिलिटीज नहीं। तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि जब हम ऐसी कोई भी ग्लोबल इमरजेंसी के बारे में बात करते हैं तो हर एक कंट्री के पास एटलीस्ट सफिशिएंट रिसोर्सेज होने चाहिए जिससे कि वो लड़ सके। साथ ही साथ एक अनदर एस्पेक्ट इस एजेंडा का ये है कि हम फ्यूचर के लिए कितने ज्यादा प्रिपेयर्ड हैं। मान लीजिए अगर 2030 या 50 में ऐसा कोई पेंडेमिक दोबारा हमें देखने को मिलता है
तो क्या हम इतने ज्यादा रेडी हैं कि हम उसको सही से टैकल कर पाए, सही से लड़ पाए? ये भी हम इस पर्टिकुलर एजेंडा में ही हम डिस्कस करेंगे। तो एजेंडा का क्रक्स तो यही है, लेकिन अब हमें ये पता करना पड़ेगा कि एक्चुअली डब्ल्यूएचओ क्या है। डब्ल्यूएचओ का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कोई ऐसी बेसिक सी हेल्थ एजेंसी नहीं है, वो यूनाइटेड नेशंस का पार्ट है। आप सबको यूनाइटेड नेशंस के बारे में तो पता होगा, राइट, कि यूनाइटेड नेशंस क्या है, वो क्या काम करती है। तो डब्ल्यूएचओ ही उसका एक प्राइमरी ऑर्गन है। डब्ल्यूएचओ का मेन एम यही रहता है कि वो सही से एक ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसीज को टैकल कर पाए, गाइडलाइंस बना पाए, और वर्ल्ड की जो मेंटल हेल्थ वेलबींग है, हेल्थ वेलबींग है, उसको सही से वो लेके आ पाए। उसमें अबाउट 194 कंट्रीज हैं डब्ल्यूएचओ में, और उनमें से कुछ कंट्रीज के पोर्टफोलियो हमने आपको भी प्रोवाइड करे। जैसे कि आप में से किसी को इंडिया का पोर्टफोलियो मिला होगा, किसी को चाइना का होगा, और इंडिया, चाइना, अमेरिका, सर मुझे इंडिया मिला है। यूके, इन सबके पोर्टफोलियोज आपको मिले। यस, सबको अलग अलग पोर्टफोलियोज सर आई मिले, राइट। रिसीव जर्मनी। ऐसे ही, ओके ग्रेट। एवरीबॉडी प्लीज म्यूट योरसेल्फ, पहले हम समझेंगे फिर उसके बाद डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अब ऐसे ही कुछ कंट्रीज आपको मिली होंगी, तो इन्हीं कंट्रीज का जो रिप्रेजेंटेशन है वो आप अपनी कमेटी में करेंगे कि वो कंट्री कितनी ज्यादा प्रिपेयर थी कोविड-19 के दौरान। जैसे इंडिया बोल सकते हैं कि मैं कितना ज्यादा प्रिपेयर था, जर्मनी अपने व्यूज सामने रख सकते हैं, यूएसए अपने रहेगी, यूके अपने लेके आएगी, राइट। तो जब भी ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी की बात होगी तब हमें डब्ल्यूएचओ को ही लेके चलना है, और डब्ल्यूएचओ ही वो प्राइमरी ऑर्गन है जो कि ऐसी ग्लोबल इमरजेंसीज को टैकल करती है, और इसी के लिए वो एग्जिस्ट भी करती है। अब हमें ये भी समझने की जरूरत है कि ये, जस्ट अ सेकंड, वी विल एड्रेस द क्वेरीज लेटर, राइट। अब हमें ये भी समझने की जरूरत है कि ये जो कोविड-19 पैंडेमिक है, ये कोई ऐसा नहीं था कि ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड था। कोविड-19 से पहले ही काफी सारे पैंडेमिक्स हमें देखने को मिले थे, जैसे कि स्पेनिश फ्लू के बारे में आपने सुना होगा जो 1920 में आया था। उसके बाद स्मॉल पॉक्स भी था, और भी बहुत सारे मेजर पैंडेमिक्स। लेकिन तब डब्ल्यूएचओ नाम की कोई ऐसी कमेटी या कोई ऐसा ऑर्गन एग्जिस्ट नहीं करता था, जिससे कि बहुत ज्यादा इनइक्वालिटीज, बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज हमें देखने को मिलती थी। इसीलिए आपको समझने की जरूरत है कि डब्ल्यूएचओ कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्यों डब्ल्यूएचओ को ही हमने चुना है इस पर्टिकुलर एजेंडा के लिए, जो कोविड-19 का एजेंडा है और ग्लोबल प्रिपेयर्डनेस के लिए, ठीक है। तो सबको कमेटी के बारे में आइडिया होगा कि हमने डब्ल्यूएचओ को क्यों चूज किया है, ठीक है। सबको ये बात क्लियर है? तो थम्स अप दिखा दीजिए एक बार। ठीक है, बस एक को ही समझ आया? ठीक है, ठीक है, ओके ग्रेट। तो डब्ल्यूएचओ के बारे में हमने समझा, सबसे थोड़ा बहुत हमने एजेंडा के बारे में समझा, ठीक है। अब हम एजेंडा को फर्दर एक चीज हम उससे समझ सकते हैं कि ये एजेंडा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। एजेंडा इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, हम समझते हैं सबसे पहले, मान लीजिए जो हेल्थ सिस्टम है, मतलब कि जो ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसीज है और जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, उसको हम फायर डिपार्टमेंट से कंपेयर करते हैं, ये एग्जांपल के लिए। अब फायर डिपार्टमेंट हर एक कंट्री का अलग होता है। मान लीजिए कहीं पे आग लग गई है, कहीं पे डिफिकल्टी आ गई है, तो उसको फायर डिपार्टमेंट ही उसको मैनेज करता है, राइट। और हर एक कंट्री का अलग फायर डिपार्टमेंट होता है। तो मान लीजिए ऐसी कोई मेजर जो ग्लोबल इमरजेंसी है वो आ जाती है, तो हर एक कंट्री अपने तरीके से उस पर लड़ सकती है। कुछ ऐसी कंट्रीज हो सकती है जिसके पास बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज हैं, उनके पास मेजर इक्विपमेंट्स हैं, मेजर यूनिट्स हैं, जिसका वो यूज करके उस फायर को जल्दी पुट आउट कर पाते हैं। लेकिन कुछ कंट्रीज के पास बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं है, जिसकी वजह से वो फायर बहुत ज्यादा बढ़ी जा रही है। फायर का यहाँ पे मतलब है ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी, उन डिपार्टमेंट्स का मतलब है वो कंट्रीज जो कि उस ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी से लड़ रही हैं, राइट। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि कैसे हम उन कंट्रीज से सीख सकते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज है, और कैसे हम उन कंट्रीज से इंस्पिरेशन लेके उन कंट्रीज को एम्पावर कर सकते हैं जिनके पास इतनी फैसिलिटीज नहीं है, राइट। तो हमें ये भी समझने की जरूरत है कि हमें ऐसा नहीं है कि हमें ग्लोबल प्रिपेयर्डनेस की अगर हम बात करते हैं तो हम दूसरी कंट्री से नहीं सीख सकते, हमें सीखने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब मान लीजिए अगर वो हेल्थ इमरजेंसी को सारे लोग एक साथ मिलकर सॉल्व करते, सारे लोग जब एक साथ मिलकर सॉल्व करते तो हो सकता था कि बहुत सारी कंट्रीज बच भी जाती, बहुत सारी जो डेथ्स हमें देखने को मिली है वो नहीं भी होती। लेकिन ऐसा बिल्कुल, इससे बिल्कुल उल्टा होता है, राइट। कोविड-19 में मैं आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ कि बहुत सी मेजर कंट्रीज थी जिन्होंने पहले से ही अपने जो वैक्सीन के जो स्लॉट्स थे, मतलब बहुत ज्यादा अपनी जो वैक्सीन थी और जो दूसरी यूनिट्स थी उनको पहले से ही एडवांस में स्टोर करके रख लिया था, जिससे कि मेजरली जो अफ्रीकन कंट्रीज थी उससे बहुत ज्यादा सफर करी, क्योंकि उनके पास कोई थी नहीं फैसिलिटी जिससे कि वो लड़ सके, राइट। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि जब हम कोऑर्डिनेशन की बात करते
हैं, ग्लोबल कोऑर्डिनेशन की बात करते हैं, तो हर एक कंट्री को हमें साथ में लेके चलना होता है। डजंट मैटर वो कितनी एडवांस कंट्री है, कितनी मतलब कितनी एडवांस कंट्री है और कितनी पुअर कंट्री है। ठीक है, ये बात सबको समझ है? यस या नो? Yes, sir. ठीक है। Yes. अब लास्ट में Yes, हम एक sir. चीज, ठीक है, अब लास्ट में हम एक चीज समझे कि मान लीजिए 2030 में एक ऐसी ही हेल्थ इमरजेंसी आ जाती है, बांग्लादेश में हमें एक नई डिजीज देखने को मिलती है। उस डिजीज से सबसे ज्यादा बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं, बच्चों को बच्चे बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, उनकी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है। WHO को इस बात का पहले ही पता लग जाता है और WHO ऐसे ही गाइडलाइंस इशू कर देती है पूरी दुनिया में कि आप अपनी कंट्रीज का जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसको संभाल के रखो, सही से अपनी जो भी फैसिलिटीज हैं उसको भी संभाल के रखो। और उसी को देखते हुए जर्मनी जैसी कंट्रीज, यूएसए जैसी कंट्रीज, ये कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको सामने दिए, वो आपस में कोऑर्डिनेट करके एक दूसरे के साथ कदम से कदम मिला के इस आपदा को सही कर रही है। तो कितना अच्छा हो जाएगा कि बहुत सारी कंट्रीज खुद मिलके खुद आपस में कोऑर्डिनेट करके इस ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी से लड़ रही है। लेकिन ऐसा पॉसिबल होना बहुत ज्यादा मुश्किल है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। इसीलिए जब हम ग्लोबल प्रिपेयर्डनेस की बात करेंगे तो हमें कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ता है, हमें इंस्पायर होकर चलना पड़ता है दूसरी कंट्री से, और हमें सारे के सारे कंसिडरेशंस भी देखने के चलने पड़ते हैं कि हम कितने ज्यादा प्रिपेयर्ड हैं, हमें जो पुराने पेंडेमिक्स हैं उससे कितना ज्यादा हमें फर्क पड़ा है, कितना ज्यादा वो हमें नुकसान पहुंचाए गए हैं, तो हमें ये भी बहुत ज्यादा जरूरी समझना है। ठीक है, तो यही एक मेजर चीज थी कि एजेंडा के बारे में कि हम किस तरीके से कितना ज्यादा प्रिपेयर्ड हैं एक आने वाले आपदा के लिए, और हम ऐसे कौन कौन से लेसन हैं जो कि हम कोविड-19 से सीख सकते हैं। कोविड-19 का मैं जैसे पहले बताया, दोबारा एक बार बता देता हूँ, सिर्फ हेल्थ इफेक्ट नहीं था उसका, उसके बहुत ही ज्यादा दूसरे फैक्टर्स भी थे। लोगों की मेंटल हेल्थ खराब हुई थी, लोगों को सोशल लाइफ खराब हो गई थी, लोग अपने घर में बंद हो गए थे, जिससे कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी अटैक्स, ये सारी चीजें भी हमें देखने को मिली थी। तो जब हम कोविड-19 के बारे में बात करेंगे तो आप इस एस्पेक्ट को भी जरूर अपनी रिसर्च में इंटीग्रेट करना। रिसर्च किस तरीके से करनी है, पोर्टफोलियो किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, वो हम आपको भी बताएंगे। एजेंडा का क्रक्स यही है कि हमें किस तरीके से प्रिपेयर रहना है फॉर द ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसीज। अब आगे हम समझेंगे कि किस तरीके से हमें रिसर्च करनी है, किस तरीके से हमें पोर्टफोलियो को अपने रिप्रेजेंट करना है, और उसके लिए आई वुड रिक्वेस्ट अपनी टू प्लीज कंटिन्यू विद द सेशन। Okay. Now everybody, सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर करो। Do you know who Sherlock Holmes is? Yes, ma'am. Yes, we've all heard about Sherlock Ma'am, I Holmes. don't. Oh, ma'am. No, ma'am, I don't watch Ma'am, cartoons. he is I watch anime. character of a cartoon. Okay. So now when we But talk Sherlock about Holmes was in our GK book. अच्छा, ओके। सो अब हम जब रिसर्च की बात करते हैं तो लेट्स टेक ऑफ इट एज एन शेरलॉक होम्स का एग्जांपल लेते हैं। शेरलॉक होम्स एक डिटेक्टिव है, ठीक है? तो इट रिसर्च इज बीइंग लाइक अ डिटेक्टिव, ठीक है? अब आप क्राइम सॉल्व करने की जगह WHO में आके व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज दैट यू आर गोइंग टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स ग्लोबल हेल्थ चैलेंजेस का पजल। जो वो है शेरलॉक होम्स है, वो ऑब्वियस क्लूज पे नहीं देखते ना। ही लुक्स एट कि वो जो सस्पेक्ट है उनके शूज पे कौन सी मड लगी थी, गेट किस वे में खुला था, किस टाइप की इंक यूज करी गई थी लेटर लिखने के लिए। तो दीज आर द एस्पेक्ट, नॉट गोइंग डायरेक्टली टू द क्लूज बट लेकिन इनडायरेक्टली केस को एनालिसिस करना। तो दिस इज हाउ यू गोइंग टू कंडक्ट योर रिसर्च, ठीक है? अब गुड रिसर्च जो होती है, जो अच्छी रिसर्च होती है, वो ऐसे होती है कि यू आर चेकिंग अबाउट द फैक्ट्स। आप ज्यादा फोकस करेंगे फैक्ट्स पे रादर देन दिस। जो जैसे जब आप नॉर्मली सर्च करते हैं इंटरनेट पे तो आप उसमें ढूंढेंगे कि फैक्ट्स क्या है, एक्चुअली जो गवर्नमेंट बॉडीज है उनका जो डेटा है वो चेक करेंगे। अब जैसे बैड रिसर्च होती है कि आप गूगल पे जाकर आर्टिकल पढ़ रहे हैं कि WHO फेल्ड ड्यूरिंग द कोविड-19, दिस इज बैड रिसर्च। अब गुड रिसर्च ये होती है कि आप समझेंगे कि WHO की लीगल पावर्स क्या होती है एंड उन्होंने डिफरेंट कंट्रीज जो है उन्होंने कैसे रिस्पॉन्ड करा था उस ग्लोबल वार्मिंग के लिए, ठीक है? अब इसमें हमें एनालाइज करना है कि क्या सॉल्यूशंस काम कर रहे थे, क्या सॉल्यूशंस काम नहीं कर रहे थे, उसके रिसोर्स को एग्जामिन करना अच्छे से एंड रिकमेंडेशंस फिर इन्फॉर्म करना फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द
सिचुएशन। अब हमें 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं, ठीक है? एवरीबॉडी विल नोट दिस डाउन। द फर्स्ट स्टेप इज दैट रिसर्च इज योर ट्रूथ सीकिंग मिशन। कि अब इंटरनेट में, जैसे मैंने पहले बोला कि इंटरनेट में बहुत सारे ओपिनियंस है कि WHO और पैंडेमिक का रिस्पॉन्स जो था उसमें बहुत सारे ओपिनियंस है। सब कुछ लोग WHO को ब्लेम कर देते हैं, कुछ लोग उनके हर डिसीजन को डिफेंड करते हैं। अब आपका जो काम है वो है कि आपको फैक्ट्स ढूंढने हैं कि WHO की एक्चुअल वार्निंग्स कब थी, अब डिफरेंट कंट्री का रिस्पॉन्स क्या क्या था इन टर्म्स ऑफ हेल्थ आउटकम्स, कि स्पेसिफिक रिसोर्सेज, कौन से ऐसे रिसोर्सेज थे जिसमें लैक करा था। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट कि हमें फैक्ट्स ढूंढना है। सेकेंड पॉइंट हमारा आ जाएगा कि रिसर्च इज योर प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल किट। कि जब हम पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस की डिबेट की बात करते हैं, इट इज नॉट अबाउट कि WHO ने सही करा या गलत करा, इट इज अबाउट सॉल्विंग रियल प्रॉब्लम्स, अर्ली वार्निंग सिस्टम्स, equitable resource distribution, international coordination, supply chain resilience, health system strengthening। ठीक है, आपकी जो रिसर्च है वो आपको ये समझाने में हेल्प करनी, जो प्रॉब्लम्स को है वो इन डेप्थ समझाने में हेल्प करनी चाहिए, ताकि जो अलग अलग कंट्रीज है उनके कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या सोल्यूशंस काम कर सकते हैं। दैट इज हाउ योर रिसर्च इज गोइंग टू हेल्प यू। ठीक है, अब आप जब रेफर करेंगे तो आप रेफर कर सकते हैं WHO की गाइडलाइंस को, आप कंपैरेटिव मोरालिटी डेटा को साइट कर सकते हैं, और कोई सक्सेसफुल हेल्थ इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज जो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग कंट्रीज की जो सक्सेसफुल एस्पेक्ट्स रहे हैं, आप उनको रेफर करके अपनी रिसर्च कंडक्ट कर सकते हैं। अब आपको, यू डोंट वांट टू बी द पर्सन हु एंटायरली सिट्स क्वाइटली थ्रू द सेशन। 2 दिन के लिए आप आके बैठ के, नहीं, यू डोंट वांट टू डू दैट। व्हाट यू विल डू इज यू विल research well, and then you will go to credible resources, and then you will find what to find about the facts, and then you will research properly. अब हम बात करते हैं portfolios की। अब हम जो portfolios is basically the role that you will be playing, which in this case is the country that you will be representing. अब एक बहुत ही important चीज है that you might be assigned to represent a low income country's position. This country often faces the worst impact during the COVID-19. ठीक है, लिमिटेड हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, कंपीटिंग हेल्थ प्रायोरिटीज, इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करे थे इन स्मॉल कंट्रीज ने। बट आपकी जॉब केवल कंप्लेन करना नहीं है अबाउट द इनइक्वालिटी, इट इज टू रिप्रेजेंट जो चैलेंजेस थे एंड कुछ प्रैक्टिकल सोल्यूशंस जो आप प्रपोज कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपका देयर इज नथिंग, नो कॉन्सेप्ट सच एज अ गुड पोर्टफोलियो एंड अ बैड पोर्टफोलियो, इट इज अबाउट योर रिसर्च कि आप अपने पोर्टफोलियो को कितना जस्टिफाई कर सकते हो और आप कितने अच्छे से अपने पोर्टफोलियो को रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, अब हमारा जो रिसर्च है, जैसे मैंने अभी बोला कि आपकी रिसर्च है विच डिसाइड्स योर पोर्टफोलियो पोजीशन। कि अब आपको एक स्टोरी की तरह बताती हूँ। अब एक पहले के MUN में 2 स्टूडेंट्स वर असाइंड सिमिलर पोर्टफोलियोज, बोथ रिप्रेजेंटिंग हाई इनकम कंट्रीज। तो दोनों को अच्छी कंट्रीज मिली जो हाई इनकम कंट्रीज होती है। उनकी मतलब इन द पोजीशन ऑफ पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस उनकी बहुत हाई इनकम कंट्रीज थी। अब a person went to spend their entire simulation repeating we need better international coordination, मतलब kept on complaining about कि rich countries should help the poor countries, this and that। अब जो दूसरा पर्सन था, स्टूडेंट भी, उसने अच्छे से रिसर्च करी थी एंड वो स्पेसिफिक मैकेनिज्म्स के बारे में बात कर रहे थे कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कैसे होना चाहिए। उन्होंने एग्जांपल साइट करे थे अबाउट सक्सेसफुल हेल्थ पार्टनरशिप, प्रपोज रियलिस्टिक फाइनेंशियल मैकेनिज्म्स एंड एंगेज कंस्ट्रक्टिवली। तो आप मुझे बताओ अब कि किसकी बेटर रिसर्च होगी और कौन, किसके ज्यादा चांसेस है जीतने के। पर्सन ए जिन्होंने बस इतना बोला कि हमें इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन और अच्छी करनी चाहिए, रिच कंट्रीज को पुअर कंट्रीज को हेल्प करना चाहिए, फिर पर्सन बी जिन्होंने एक्चुअल इश्यूज को एड्रेस करा। फटाफट से ए और बी टू मी। Person B. Person B. Person B. Person. Amazing. Person B. So you all have to be like person B now. ठीक है, इन डेप्थ रिसर्च करेंगे हम लोग, फैक्ट्स पे फोकस करेंगे एंड क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस हुई थी वो भी एड्रेस करेंगे एंड उसका रीजनेबल एंड प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या हो सकता है हम वो भी प्रपोज करेंगे। इतना क्लियर है सबको? थम्स अप। यस, डेफिनेटली यू कैन, पर लेकिन क्रेडिबल सोर्सेज से हम लेकर आएंगे। जो गवर्नमेंट वेबसाइट है, WHO की वेबसाइट है, ओनली क्रेडिबल सोर्सेज के थ्रू हम इंफॉर्मेशन लेकर आएंगे। ओके, अब हम बात करते हैं साइट्स की। जब हम अच्छे से रिसर्च करते हैं और आपको हाई इनकम कंट्री रिप्रेजेंट करने को मिलती है,
यू शुड गो बियॉन्ड टॉपिक सिंपल टॉकिंग की ग्लोबल सॉलिडारिटी की बात कर रहे हो आप, यू कैन डिस्कस स्पेसिफिक मैकेनिज्म फॉर शेयरिंग रिसोर्सेज। अगर आप बड़ी कंट्री हो तो आप शेयरिंग रिसोर्सेज की बात कर सकते हो, डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रेशर्स की बात कर सकते हो, पर्पस इनिशिएटिव फाइनेंसिंग सोल्यूशन प्रपोज कर सकते हो एंड एवरीथिंग। ठीक है, अब एक हम प्रैक्टिकल एडवाइस। यस Ma'am, I told you ना that I made a full report on it. So ma'am, मैंने कुछ sites ली थी जैसे कि ब्रिटनिका, तो वो भी काम करेंगे ना? Because there are some sites like ब्रिटनिका etc. अभी अभी आपका क्वेश्चन मैं अभी लेती हूँ, ठीक है, थोड़ी देर में। अभी एंड में आई एड्रेस योर क्वेश्चन। अब एक प्रैक्टिकल एडवाइस हम आपको देते हैं कि स्टार्ट विद WHO की ऑफिशियल रिपोर्ट्स, ठीक है, कोविड-19 के रिस्पॉन्स में। द कोविड-19 स्ट्रेटेजिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स प्लान, ये वाली जो एक रिपोर्ट है, प्लीज उससे स्टार्ट करेंगे। एंड और भी काफी सारी रिपोर्ट्स हैं जो WHO की वेबसाइट पे अपलोडेड हैं, तो उन रिपोर्ट्स पे रेफर करके उनको स्टडी करके एनालाइज करके समझना है कि कोविड-19 का रिस्पॉन्स एक्चुअली कैसा हुआ था। ठीक है, दीज गिव यू द ऑफिशियल WHO पर्सपेक्टिव एंड टाइमलाइन। ठीक है, अब WHO की, you don't have to entirely focus on WHO के sources. These critiques from member states, analysis from global health experts, reports from organizations. ठीक है, हमें ये सब भी फोकस करना है। अब एक रिसर्च की टिप है दैट विल मेक यू स्टैंड आउट। अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स एंड केस स्टडीज, बिल्कुल स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स एंड केस स्टडीज पे हम फोकस करेंगे सो दैट यू स्टैंड आउट इन योर कमिटी। अब जब साउथ कोरिया ने सक्सेसफुली कोविड-19 को कंट्रोल करा था थ्रू testing and contact tracing, what exactly did they do differently? ठीक है, when Rwanda achieved high vaccination rates despite being a low income country, how did they manage it? When the European Union struggled with the vaccine procurement coordination, what were the specific institutional failures? तो ये सब कुछ कुछ चीजें हैं जो आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें हेल्थ आउटकम्स और इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, दोनों एस्पेक्ट से कवर करके अपनी रिसर्च कंडक्ट करनी है। इज एवरीथिंग क्लियर एज ऑफ नाउ? ओके, अब हमें एक चीज और इंश्योर करनी है कि जो हमारा वी डोंट हैव टू इग्नोर द रोल ऑफ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बियॉन्ड WHO। ठीक है, हाउ डिड द वर्ल्ड बैंक, द IMF, द गावी एंड द अदर एक्टर्स कंट्रीब्यूट एंड कॉम्प्लिकेट पैंडेमिक रिस्पॉन्स। ठीक है, तो थोड़ी सी रिसर्च अपनी बियॉन्ड WHO भी रखनी है, बट देन स्टिकिंग टू द एजेंडा ओनली। ठीक है, अब आपका जो रोल है, अब आपको अपने आप को समझना है एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर, नॉट अ पोजिशन डिफेंडर। ठीक है, ये चीज हमेशा याद रखनी है कि यू आर नॉट, अपने आप को प्रॉब्लम सॉल्वर समझो एंड पोजिशन डिफेंडर नहीं। आपको रिप्रेजेंट अपने पोर्टफोलियो के इंटरेस्ट करना है, बट यू हैव टू ऑल्सो वर्क टुवर्ड्स सोल्यूशन दैट सर्व ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी। ठीक है, the best committee members are those who can hold their ground on core principle while being flexible on implementing details। ठीक है, तो आपको अपनी रिसर्च करनी है, अच्छे से रिसर्च करनी है, एंड यू विल आल्सो हैव टू लिसन टू अदर पीपल जो वो कह रहे हैं, जो वो सॉल्यूशंस प्रपोज कर रहे हैं। ठीक है, I believe wrapping up, just remember that you're in the shoes of global health leaders, ठीक है, dealing with challenges that affect everyone on the earth. Your research will be your strongest weapon. So one thing you have to ensure is you have to research very, very well, go through credible resources and research, and make sure that your research aligns with your portfolio and it is in accordance with the agenda itself. Okay. Ma'am, can you repeat the agenda again? Sorry, I didn't heard it clearly. Can you I repeat the I agenda am again? unable to. Can Ma'am, somebody can you please tell repeat me? the Acha, agenda agenda. You want to again? know the agenda? The agenda is actually in the profile DP of your WhatsApp group, but it's deliberation on the lesson learned from COVID-19. COVID-19 से जो हमने lessons learn करे थे and being prepared for the upcoming. अगर कोई आगे आता है तो उससे उसके लिए preparedness करने के लिए. That is the agenda. Okay. Now the Okay, floor is ma'am. open for doubts. तो doubts है तो please raise your hands and then we'll ask you to unmute. तब अपने doubts पूछना. Yes, Shweta. I believe. आपका नाम क्या है? Sorry. Ma'am, Parth. पार्थ, हाँ तो Ma'am, I got Israel and I did research. Will Britannica be okay if I did research from them, from the yes, पर website Britannica? पार्थ, बेसिकली ब्रिटनिका में क्या होता है, वो लिटरेचर के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है, राइट? उसमें बहुत सारे लोग अपने भी इनपुट्स देते हैं, इवन दो इट्स अ रिलायबल सोर्स, बट फर्स्ट प्रेफरेंस जो रहती है इन ऑर्डर टू
prepare for the reports is obviously the UN reports or the World Health Organization की reports. ठीक है, you can use those websites, but only if you have utilized the WHO के official reports and UN के official reports. Only after that, you Okay, cannot and use it as the first preference. ओके एंड सर आई एम इजराइल, तो मैम सर उसके लिए कुछ जैसे डाटा भी गिवन होता है ना कि इजराइल ने कितना अपना कितने डॉलर्स अपने हेल्थ केयर पे स्पेंड करे, उस पर स्पेंड करे, तो वो मैंने इजराइल की जो गवर्नमेंट वाली है उससे लिया है. हाँ, ग्रेट ग्रेट, आप बिल्कुल साइट पे